Hello friends, this is the unit 1. We have to start it. Civics, class 8. Now we have to discuss unit 1. This is the first video of class 8 civics. On that day we have started, and day to day we have given more and more video and cleared all the chapters they have in this book, and made a geography class 8 videos and history part 1 and part 2 also. So we start today unit 1. What this chapter was the Indian Constitution. This was this chapter 1. भारत का संविधान. भारत का संविधान पहला हमारा जो यहाँ दिया गया है उसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे. दिस वॉज लाइक अ क्वेश्चन. यह एक क्वेश्चन ही है. वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है. क्यों देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कई कारणों की वजह से. संविधान है क्या, पहले हम इसको जानेंगे. संविधान is a document that tells about the rule and regulation that we have to follow, and they help in to run the country properly and easily. They can help to run the country very easily. This is important. So all country need a constitution. This is the what is that? This is point we have to discuss. What the point is that? Their point tell us 1934 the Indian National Congress made a demand of Constitution Assembly. During the Second World War, this aspiration for independence Constitution as Assembly turned to Indian Games Monument, and this was convened in December 10, 1946. Convened. This photo on page 2 shows some members of the Constitution Assembly. Between October 20, 1946 and November 1949, the Constitution Assembly drafted a constitution for an independent India, free to shape their destiny at last after 150 years of British rule. The member of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will need more about the work the Constitution Assembly later in this chapter. The photo alongside shows the Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constitution Assembly. There was the person who had stand and given speech was and the Pandit Jawaharlal Nehru. हम इसमें यह जो हमारा दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री टू सेव देयर डेंसिटी लास्ट आफ्टर 150 साल में ब्रिटिश रूल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 150 साल तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चला ही था. व्हाट द पैराग्राफ टेल अस. Today's most countries in the world have a constitution. While a democratic country is likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays in certain ideals that form the basics of the kind of the country and the citizen aspire to live in. यह जो हमारा ये जो पैराग्राफ हमें फुल पैराग्राफ हमें बताता है जिस कंट्री में संविधान इट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है वह कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगा. ऐसा नहीं है वह कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं भी हो सकता है. दिस पैराग्राफ दैट कैन टेल अस. द नेक्स्ट इज
the Nepal constitution. There also know the struggle of the Napoleon to change the Nepal constitution. Nepal constitution. The country of Nepal has witnessed several people of struggles for democracy. Have several people of democracy. There was a people of struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Zamendra cutting the Maoist unfreezings. What can and what they were problems? They have more problems. Have more problems. The country have several people struggle for democracy. आज़ादी के लिए, लोकतांत्रिक देश बनने के लिए वहाँ के लोग लड़ते रहे, एक आंदोलन की इतने ज़्यादा समय तक, ताकि उनका चेंज हो सके डेमोक्रेसी. ये जो हमारा कंट्री मोनार्ची टू हैव टू change it into democratic, so they have to struggle. In 1990, that established democracy lasted 12 years until 2002. In this October 2002, in 2005, the king that finally took over the head of the government on February 2005. In the November 2005, the Maoists joined other political parties to 12-point agreement. This agreement is signaled large public in immediate return to democracy and peace in 2006. Nepal became a democracy after revolution. Okay, that's very important, interesting. They have very interesting videos, interesting topics, which we have to discuss. इसमें हमें बताता है कि जैसे कि जो हमारा नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश, जो हमारा जैसे कि वह चीन के पास नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, उसमें या वहाँ के लोग, नेपाल एक गरीब देश है, ये सभी लोग जानते हैं. वहाँ के लोग आंदोलन करते थे, क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए. और वो डेमोक्रेटिक कंट्री, वह उनका जो कंट्री था मोनार्ची था. मोनार्ची, यू हैव टू क्लियर मोनार्ची. तानाशाह नहीं, राजतंत्र क्या होता है? जैसे कि पहले राजा के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के, जैसे बेटे इनहेरिटेंस पीपल कैन रूल्ड ओवर द नेपाल. So this is not good for a country. So people can struggle that in 1990 and in 1922. ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे जो फिर इस आंदोलन के उपरांत उन्हें, जैसे कि लोकतांत्रिक देश, कुछ मिनिस्टर्स पावर, जो मंत्री को पावर मिल गया, ये भी सही नहीं था. और फिर बाद में धीरे धीरे करते करते फिर राजतंत्र आ गया. और फिर इसलिए उन्होंने फिर स्ट्रगल किया. 2008 में क्लियरली उन्होंने आज़ादी पाई. एक लोकतांत्रिक देश बना. नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एब्लिशिंग द मोनार्ची. टू डिस्कस मोनार्ची. What is that? This is a Nepal constitution. This is a Nepal struggle to make our country democratic. And what is that? And democracy. What is democracy? In the democratic country, people can not discriminate another people on the basis of caste, gender, and majority, minority, and etc. Whatever, they can't to discriminate. In this, the story of a monitor in class and और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि अगर कोई किसी का जब पावर है, वो अपने पावर में गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. और यही बता, लेकिन इसमें ये जो वीडियो
हमारा यहाँ पे दिया गया है एक बॉक्स में कहानी। उसमें ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मॉनिटर है, मॉनिटर से आप सभी परिचित होते हैं, क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, हम इसको कहानी को पहले समझ लेते हैं फर्स्टली। जो एक मॉनिटर होता है, मैम जाती है कुछ समय के लिए बाहर, तो बस उससे बोला जाता है कि तुम क्लास की देखभाल करना, देखना कि कोई शोर मत मचाए, तो वह चला जाता है। उसे एक लड़का जो है, क्या है कि अनिल नाम का एक लड़का है। वह शांत, उसे उसकी पर्सनली दुश्मनी थी, जैसे कि बच्चे आपस में लड़ते हैं उस प्रकार मॉनिटर से वो मॉनिटर पे खुश नहीं रहता था। इसलिए वो गलत सलत उसे बोला कि अब तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, तुम्हें हम मैम से बोल देंगे ऐसा। लेकिन फिर बाद में हुआ कि मैम आई और से उसको डांट लगाई कि तुम मॉनिटर क्यों को परेशान करते हो, और कॉपी में कितनी बार 100 टाइम्स लिखवाई कि तुम मॉनिटर को परेशान नहीं करोगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यह इस प्रकार का हमें कार्य नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एंड दैट दिस videos, this part, this poem, this stories can tell that majority, there were a school game periods, that's game periods. Boys and girls were playing, boys were playing cricket, basketball today for a change. देखिए यहाँ इसमें कहानी में बताता है कि जो लड़की है, ये कुछ लड़की के जो खेलते थे, ये जो मिनॉरिटी बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी, जैसे कि वो सब दिन भर हमेशा जब भी गेम पीरियड होता है तो ये लड़कियाँ सिर्फ बास्केटबॉल ही खेलती हैं। उनका मन करता है कि हम क्रिकेट आज खेलें, किंतु लेकिन ये जो बॉयज़ हैं वो खेलने नहीं देते, क्योंकि ये मेजॉरिटी में मैम, जैसे कि वहाँ क्लास में ये था कि जिसका अगर ज़्यादा बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं तो मेजॉरिटी के हिसाब से ही वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट खेलने के लिए मिलता था। यही इस कहानी में है। और इस कहानी में क्या है, स्वम इज फिक्स से डिसीजन टू फिक्स। ये इस कहानी से हमें बताता है कि इस हमारे लोकतांत्रिक देश में सबको अपना चुनाव करने का समान अधिकार है। So has a decision to fix, to make that. ये लड़की सोचती है कि उसको टीवी देखने का मन करता है। वह सोचती है कि हम टीवी देखेंगे, लेकिन उसका 2 दिन एग्ज़ाम रहता है। क्या रहता है? एग्ज़ाम। उसका एक प्रोग्राम आता है टीवी सीरियल, और लेकिन सोचते हैं कि हम पढ़ ही लेते हैं अच्छा। और उसकी एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ कि वह टीवी देखना ज़्यादा उसको चाहती थी, उत्सुक थी। फिर जब एग्ज़ाम के दिन, लेकिन वह पढ़ी। एग्ज़ाम के दिन उसे जब एक एग्ज़ाम का पेपर आया तो अधिकतम उसमें उसी लास्ट 2 चैप्टर का ही क्वेश्चन था जो वह उसका बचा था। वह बोली, हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ा, मैं टीवी नहीं देखी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये भी कि सब लोग अपना खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स and examples, constitutive rules, and Dr. Bhimrao Ambedkar federalisms, parliamentary form of government, secularisms, and this submission of power, fundamental rights, rise to freedom. This is a seven fundamental right which we have to clear in next part of videos, and a question answer which we also have to discuss. And that goes to on the channel Raj classes, and you can have to watch the question exercises which we already explained and
discussed. Thank you for watching the video. जाने से पहले हम लोग आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे ग्लोसरी और यहाँ जो इंडियन पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम जो कुछ बचा हुआ है, कहाँ से यहाँ से बचा हुआ है ना, इसको यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर हमारा ये पेज नंबर है कि 9, ये हमारा पेज नंबर 9 to 16 अभी हम लोग को क्लियर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द राज क्लासेस. This is Raj classes. That is Raj Singh. In the next video we have discussed. So bye to all of you.